hello, dear students. Welcome to the class. And we are going to get started in roughly 1 minute from now. I think more students are joining in. So let's get started in 1 minute. In the meantime, if you are not part of this channel, please join it right now. By the way, we have started our NSEP3 course, and I'll give you some information about it. So NSEP3 module is being launched on 16th of March. If you want to join that, please do join before 16th of March. I said it's May, है ना? टाइम ट्रेवल हो रहा है मेरा थोड़ा, है ना? मार्च में थोड़ी, हम तो मई में है भाई. So let's get started in roughly a few seconds from now. I can see full josh, full energy. So back in action with this series on, right? So we are back in series of accelerated maths. Okay. I'm just setting a few things here. थोड़ा सा delay हो रहा है आज. I'm really sorry for that. So Priyanshu, Mohan, Rudransh, welcome. Okay. Okay. Chali, let's get started with the class today. So hello. So today we are going to talk about trigonometry. Obviously, trigonometry is one of the things that you use throughout your journey of academics. चाहे फिर वो maths हो, physics हो, जो भी हो, so you always use trigonometry, and this is one of the most interesting chapters, by the way. और इसको पता नहीं क्यों schools में इतना difficult बना देते हैं, confusing बना देते हैं. But first of all, give me a thumbs up और an acknowledgement कि board exam फोड़ने का जो इरादा है, that is still on track. है ना? पूरे जोश के साथ लगे हुए हो. कितने मार्क्स लाने का प्लान है मैथ्स में? दिस इज द मैथ्स क्लास. सो मैथ्स में क्या प्लान है? 90%, 95, 98 के पूरे 100? टेल मी. And the students who are going to watch the recording later, put it in the comment box, and I do reply to every comment. ये मेरी आदत है, मैं हर comment का reply करता हूँ. So please put it in the comment box. And Priyanshu says भाई पूरा इरादा है. चलिए start करते हैं. So my name is Bhavdeep Sethi. I have been teaching physics for a long time, and I convert physics haters to physics lovers. And many students contacted me, sir, maths से डर लगता है, physics तो चलो बात समझ में आ गई, but maths से अभी डर लगता है, तो है ना, full marks लाने क्या बात है? So I'm converting math haters to math lovers right now, and I always say physics को रट्टा मारोगे तो physics बुरा मान जाएगी, है ना? Now today we will talk about trigonometry, trigonometric identities, and everything we are going to cover in very quick format here. So first of all, just a recap of why we started accelerated math, because Olympiad preparation, you know, so most of you here are preparing for some Olympiad, maybe or maybe you're preparing for JEE or NEET. So that preparation is easy once you have mastered your NCERT level portion. Now the problem there is कि your school will take their own sweet time, क्योंकि उनके पास एक एजेंडा होता है that they have to take everybody along. So हर चैप्टर को हफ्तों में महीनों में पूरा करने वाले हैं. बट तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, because if you really want to prepare for these competitive exams, you have to finish everything in a fast forward manner, and that is why you don't have months and months that the schools are going to take.
So उसका क्या इलाज है? That is why VOS brought up an accelerated math series for you. So in a nutshell, very quickly, one session in one chapter in one session, 13 chapter है तो 13 sessions हो जाएंगे. And depending on एक chapter इधर उधर लग रहा है अभी तो 14 होंगे तो 14 हो जाएंगे. Now we are going to have the complete coverage. There is no catch कि भाई थोड़ा सा पढ़ा देते हैं बाकी आप फीस देकर आ जाओ, ऐसा नहीं है. It's a full course, full syllabus, 100% syllabus being covered here, and there will be theory, PYQs and problems and also homework. So you are going to get homework in the Telegram channel. So this course is not going to spoon feed you. अगर आप चाह रहे हो सारे NCERT solutions मिल जाएंगे, you are at the wrong place, है ना? I'm going to teach you conceptually. I'm going to teach you the concepts, and you are highly encouraged to solve a lot of problems on your part. चलिए pledge ले लीजिए before I start the class. This is the standard pledge that we always take. कि you are never going to memorize physics and maths. Please take this pledge and give me a thumbs up once you have taken this pledge. कि you are never going to memorize physics and maths, and that goes with other subjects also. But क्योंकि मैं physics और maths पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी pledge दिलवा रहा हूँ. But before I start trigonometry, I'm going to start with a myth buster. So there's a big myth buster here. So there is a big myth out there, and that is that trigonometry deals with right angled triangles only. मतलब ये गलत है ना? This is a big myth. So trigonometry deals with right angle triangles. एक गलत बात है. पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि you're studying trigonometry. You're not just supposed to memorize those identities. You're supposed to understand what you're studying. So trigonometry is not just about right angle triangles. Trigonometry is much beyond that. Trigonometry can be used with any angle triangles. It can be scalene triangle, it can be isosceles triangle, equilateral triangle. But in your syllabus, we have right angled triangles, and that is why we are focusing on right angle triangle. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि trigonometry is much beyond right angle triangles. And in fact, trigonometry is used beyond triangles. अब right angle triangle भूल जाओ. हम तो कह रहे हैं कि right angle triangle नहीं दूसरे triangles में भी यूज होता है. अरे वो तो ठीक है, पर उसके भी आगे यूज होता है. जब आप waves पढ़ोगे, है ना, 11th में जब आप आओगे साउंड वेव्स पढ़ोगे, you will see how those waves are sine waves. When you study alternating currents in your 12th grade, you will see how the current fluctuates as a sine wave. So trigonometry is not just limited to right angle triangles. So कई बारी ये आपने मीम्स देखे होंगे व्हाट्सएप पर कि सर साइन थीटा कॉस थीटा तो पढ़ लिया था स्कूल में, अब उसका यूज कहाँ करना है. अब ये मीम्स इसलिए बनते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एवरी डे इन योर लाइफ यू आर एक्चुअली यूजिंग साइन थीटा कॉस थीटा विदाउट योर नॉलेज. व्हेन यू आर पुलिंग दैट सूटकेस at the airport or station, so when you're pulling the suitcase, the force applied varies as the cos of the angle of, you know, whatever that, you know, you might have taken my classes on vectors, so you know what I'm talking about. So sin theta cos theta हर जगह यूज होता है. उस तरह के मीम्स चलिए लाइट मोड में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ में कहीं ये चीज यूज नहीं होने वाली है. हर जगह यूज होने वाली है. So I'm starting with your textbook obviously. So आपकी textbook में सबसे पहले 8.1 जो है that is introduction, and it is talking about this Qutub Minar, and they're saying okay, how can I measure the height of this Qutub Minar without climbing on it, है ना? So this is one of the first things out there. Then what is trigonometry? So trigonometry is actually a branch of mathematics that deals with relationships between sides and angles of triangles. ये आपको पता होना चाहिए from exam point of view. From life point of view, you should know कि हाँ, this is छोटा सा part. It's a very tiny part of the trigonometry definition. Trigonometry definition is way beyond that. But from your 10th board perspective, you should know that it is a branch of mathematics that deals with the relationships between the sides and angles of triangles. And in 10th grade and even in 12th grade, you're limiting yourself to right angle triangles. ठीक है. इंट्रोडक्शन में आगे ही बातें होती हैं कि ये शिप है, ये है, इस तरह से, है ना, ऑल दिस. सो यू रीड इट, यू रीड ऑल दिस 8.1 इंट्रोडक्शन पार्ट योरसेल्फ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो वी विल फोकस ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज 8.2. नाउ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. पहले तो इसमें मैं राइटिंग पैड लेकर आ जाऊं, मैं जो हर बार भूल जाता हूं. यू कैन सी हाउ गुड माय मेमोरी इज एनीवेज. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें कोई ट्राइंगल मैंने लिया, है ना.
अब मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया सपोज, है ना, खुद ही बना लेते हैं ट्राइंगल में क्या है। So एक triangle मैंने बना दिया, right angle triangle. So let's say I'm talking about this angle. Angles are usually denoted by Greek letters, theta, alpha, gamma. है ना? So let's call this angle being theta. अब longest side hypotenuse होती है, वो तो बच्चा बच्चा जानता है यार, come on. है ना, बच्चा जब born होता है उसको पता होता है तब से कि भाई longest side is the hypotenuse. So let's call this hypotenuse. अब इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड है तो उसको बोलेंगे ऑपोजिट, और एंगल के ऑपोजिट साइड को बोलेंगे ऑपोजिट, एंगल के एडजेसेंट साइड को बोलेंगे एडजेसेंट। अगेन वन मोर टाइम, एंगल के जो ऑपोजिट साइड है उसको बोलेंगे ऑपोजिट, क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट है। एंगल के एडजेसेंट जो साइड है उसको बोलेंगे एडजेसेंट। यहाँ पर तूफान आ चुका है मेरे घर पे, आई होप मैं उड़ नहीं जाऊंगा या विंडोज बंद करनी पड़ेगी। इट्स रियली अ बिग स्टॉर्म कमिंग इन, है ना, मतलब इतने दिनों बाद एक्सेलरेटेड मैथ की क्लास आई कि वो हवा भी एक्सेलरेट हो गई, है ना, बड़े जोश के साथ, या फिर पता नहीं, जब जब एक्सेलरेटेड मैथ की क्लास होती है तब तब बारिश होती है। चलिए, तो एंगल के एडजेसेंट एडजेसेंट, ऑपोजिट इज ऑपोजिट, बट देन यू हैव टू आल्सो थिंक अबाउट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, फ्रॉम दिस एंगल्स पर्सपेक्टिव, दिस इज द ऑपोजिट एंड दिस इज द एडजेसेंट। इसलिए मैं परपेंडिकुलर, काफी लोग इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं, दैट्स नॉट राइट एक्चुअली, आई मीन दैट्स मिसलीडिंग, क्योंकि अगर आप इस एंगल के पर्सपेक्टिव में देखो फिर आप बोलोगे परपेंडिकुलर है, पर लग तो ये बेस रही है भाई, दुनिया बेस पे खड़ी है, ऐसे ये ट्राइंगल बेस पे खड़ा है, एंड दैट्स व्हाई आई से दैट पंडित बद्री प्रसाद हर 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 भोले, या वह सो काटोआ, वो सब लाइक आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू मेमोराइज दोस थिंग्स, बट मेनी स्टूडेंट्स डू। तो एंगल के ऑपोजिट, अगर ये एंगल का पर्सपेक्टिव है तो इस एंगल के पर्सपेक्टिव में ये ऑपोजिट होगा और ये एडजेसेंट होगा। यहां तक क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप इफ दिस पार्ट इज क्लियर, बिकॉज देन आई हैव टू स्पीड अप अ लिटिल। अगर ये क्लियर है तो मैं स्पीड अप करूं थोड़ा सा। हाँ, सो गौतम बेटा, गौतम कटारिया बेटा, contact me on telegram at Bhavdeep Singh Sethi, and then I will be able to help you on that, right? So this is theta, this is opposite, this is adjacent। चलिए आगे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले उस तरह से याद करना है, सोका टोआ याद करना है, वो आपकी चॉइस है। मैं कॉमन सेंस से यहाँ पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उतना कॉम्प्लिकेट बना के ना मजा सा नहीं आता चीजों का। तो अगर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, and let's say this side is theta, I'm talking from this perspective theta. So there are 6 trigonometric ratios that you have to understand. Sin theta is basically this by this. Now you call it perpendicular by hypotenuse, opposite by hypotenuse, I mean it's your choice, but if you want to understand conceptually, sin theta is this, cos theta is this. So again one more time, sin theta is this, ऐसे विजुअली आप याद करो उसको, विजुअली दिमाग में बिठाओ। साइन थीटा इज दिस, ऐसे कर लो ना ट्रायंगल बना के, साइन थीटा इज दिस बाय दिस, cos theta is this by this, tan theta is this by this. So then if for students who want to memorize, it's more like, so the first ratio that you have to know is, I'll put it a little on the left because I need a lot of room here. So this was my hypotenuse, and so sine theta is my first ratio, and that is defined as opposite by hypotenuse. So example being, बच्चा बच्चा जानता है ये वाला, कि अगर ये 3 होता, सपोज ये 3 था, ये 4 था, तो ये हाइपोटेन्यूज 5 होगा, है ना, अगर ये 3 है ये 4 है तो 5 होगा। तो इस ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव में साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, इन दिस केस इट इज इक्वल टू 3/5। क्या साइन थीटा 3/5 होता? नहीं, इस ट्राइंगल में 3/5 है। इसी तरह cos थीटा जो होगा, विजुअल मेमोरी में आप बिठाइए, cos थीटा इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में एडजेसेंट 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये हो गया 4/5। The last one is tan theta. Tan theta is this divided by this, this divided by this. So tan theta is basically, so tan theta is equal to
opposite by adjacent. So opposite by adjacent. So that is 3/4 in this case. ठीक है. अब tan theta को अगर आप ध्यान से देखोगे, so isn't tan theta also equal to sin theta by cos theta? क्योंकि आप देखो ना, अगर sin थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय cos थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, O बाय A बचेगा. यहां तक क्लियर है? ये तीन रेशियोज हैं जो आपको मेजरली यूज होने वाले हैं. sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा. अगर आपने इसको इस तरह से विजुअली समझ लिया ना, तो आपको ज्यादा इंसाइट मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में. अगर आपने रट्टा मार लिया तो हमेशा आप बोलोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या सो काटो हुआ, वो आपको एक फील नहीं दे पाएगा. अगर आपको फील करना है ट्रिग्नोमेट्री को, सो यू रियली हैव टू गो दिस वे. हाउ मेनी आर राइटिंग ISI एग्जाम? सो वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, ज्योति, and we'll talk about it later, but for now these are the three ratios. Now there are three more that you have to know. इसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा. तो एक काम करते हैं, यहां थोड़ा सा रूम बना के ही लिख लेते हैं. साइन थीटा इज 1 by कोसेक थीटा. सो कोसेक थीटा इज 1 by साइन थीटा. सिमिलरली कॉस थीटा का होगा सीकेंट थीटा. दैट विल बी सीकेंट थीटा. ठीक है. बारिश तूफान आ रहा है, चाय भी आ गई है ना. जब जब एक्सेलरेटेड मैथ्स की क्लास होती है, कहीं ना कहीं तूफान आता है. सो cos थीटा इज, अभी मेरे को है ना दिमाग ज्यादा चलेगा क्योंकि आई रोट द ऑपोजिट हियर. सो 1 by secant theta. So secant theta is the reciprocal of cos theta. Similarly tan theta का reciprocal होगा cot theta. Cot theta is 1 by cos tan theta. So ये जो 6 trigonometric ratios हैं, if you try to memorize them, that's bad. है ना. You try to understand conceptually or visually. You do the sin theta, cos theta, tan theta. बाकी तो फिर आपको पता ही है उनके reciprocals हैं. We will continue and see how to use them. So let's see an example. Given tan A is 4/3. है ना. That's example 1 in your book. So given tan A is 4/3, find the other trigonometric ratios of angle A. So अब एक triangle बना लीजिए. अब ये A क्या है? जैसे ट्राइंगल है ना, इसका नाम होगा ABC. सो व्हेन यू आर सेइंग tan A, मतलब इस एंगल के पर्सपेक्टिव में वो बोल रहे हैं, tan A is 4/3. अब tan A होता क्या है? tan A is opposite by adjacent. तो this divided by this is 4/3. तो is this 4, is this 3? नहीं. ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स. एग्जाम में अगर फुल मार्क्स लेने बोर्ड में, आपको ध्यान रखना है, आप इसको 4 और इसको 3 नहीं बोल सकते. आपको क्या पता भाई, उसका रेशियो बोला है 4/3. हो सकता है वो 8/6 होता तो वो भी तो 4/3 होता. अगर वो 40/30 होता तो भी 4/3 होता. तो आप उसको 4 और 3 लिखकर गलती नहीं करोगे. यू विल से दिस इज इक्वल टू 4x एंड दिस इज इक्वल टू 3x, बिकॉज आपको नहीं पता है ना. जैसे मैंने कहा, रुद्रांश के पास मेरे से डबल पैसे हैं अभी उसकी जेब में. तो क्या मेरे पास 1 रुपए है, रुद्रांश के पास 2 रुपए है? नहीं. रुद्रांश के पास मेरे से डबल है. दैट आई डोंट नो. आई मीन मेरे पास कितने, उसके पास कितने. सिमिलरली अगर ये 4 है तो ये 3 है, ये 8 है तो 6 है, तो भी तो रेशियो वही होता. सो डू दिस, है ना. So now if you use Pythagoras theorem, you know this is going to be 5x. Now they are saying find the other trigonometric ratios, and then you start doing sin of A is equal to opposite by hypotenuse. So when you write 4x by 5x, you end up getting 4/5. Similarly, when you do cos of A is going to be 3x by 5x. So this is 3x by 5x. So that is coming out to be 3/5. है ना. सिमिलरली tan तो मेरे को पता ही था. अब आप आगे और पता करिए. कोसेक और कोसिकेंट ऑफ A is 1 by sin A. 1 by sin A. We know this is the reciprocal of sin, so that is going to be equal to 5/4. है ना. एक चीज और कई स्टूडेंट्स मेमोराइज करते हैं, साइन ऑफ एनी एंगल इज लेस देन इक्वल टू 1. ऑब्वियसली यार, साइन इज दिस डिवाइडेड बाय दिस.
Can this be ever greater than hypotenuse? It is not possible. How can this side be ever greater than hypotenuse? So this divided by this can never be greater than 1. And there are few things which are obvious. Example 4 from your book. In a right angle triangle ABC, right angled at B, if tan A is 1, then verify that 2 sin A cos A is 1. So please students, I encourage you, everybody try this question out right now. Everybody try this question right now. For 2 seconds, only 2 minutes, या 1 minute काफी है, तब तक मैं चाय बिस्किट खा लेता हूँ, तूफान आ ही रहा है. तो ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल्ड एट बी. तो राइट एंगल जो है वो बी पर है ना. तो जब आप ट्राइंगल बनाओगे तो अगर ये ए है तो बी यहाँ पर, ये बी पे राइट एंगल है. दिस इज वन ऑफ द कॉमनली मेड मिस्टेक्स इन एग्जाम. स्टूडेंट से ए बी सी और ए समथिंग बी सी. नो नो नो, बी शुड बी द राइट एंगल. अब सी और ए को आप इंटरचेंज कर सकते हो, दैट्स फाइन. If tan A is 1, so इसके perspective में tan जो है 1 है, but tan is this divided by this. So that means if this is x, this is also x. तभी तो tan A 1 होगा ना. Tan A is this side divided by this side. तो ये दोनों बराबर है. बराबर है कितनी मुझे थोड़ी पता, मैं 1 1 नहीं लिख सकता. Technically that is going to be wrong. So if this is x, this is x, this is going to be square root of 2x. Now, most of the students in this class, they are preparing for NSCP or JEE or NEET. So, इतना तो है ना common sense से आ गया. अब कह रहे prove करो this is equal to 1. So, 2 times sin A. Sin A will be this divided by this. X divided by root 2x multiplied by cos A. Cos A will be x divided by root 2x. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. सो इस x से ये कट गया, इस x से ये कट गया, रूट 2 टाइम्स रूट 2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया. हेंस प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड. आर यू गेटिंग इट? तो अगेन यहां पर ये गलती मत करिएगा 1 और 1 लिखने की. दिस इज नॉट 1 and 1. वी नो द रेशियो इज 1. दैट डजंट मीन दे आर ईच 1. Okay, so Rishi says I am in class 11 and plan to give IOQM. Just found about it. So sir, can you please suggest plans, because people normally go for, yeah, contact me. I mean, I will guide you. I help so many students. So at the rate Bhavdeep Singh Sethi, that's my telegram ID. So Bhavdeep, अगली बार से मैं इसकी स्लाइड ही बना लूंगा, ठीक है. Bhavdeep Singh Sethi. But when you contact me, give me the perspective, give me the context. Don't say hi sir, I'm Rishi. भाई मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम ऋषि है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम. सो टेल मी सर, दिस इज ऋषि हु वाज वाचिंग योर यूट्यूब एंड आई वाज आस्किंग दिस. थोड़ा पर्सपेक्टिव दे देना क्वेश्चन का, है ना. नहीं तो हाय सर दिस इज ऋषि, कैन यू आंसर माय व्हाट आई आस्क्ड यू, व्हेन, वेयर, है ना. हाँ. So exercise 8.1 question 2 in figure 8.13, this is 8.13, find 10p minus cot r. So 10p इस एंगल के पर्सपेक्टिव में बोला है ना, इस एंगल के पर्सपेक्टिव में. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड 10p फर्स्ट. सो व्हाट इज 10p? 10p विल बी एडजेसेंट, ओ सॉरी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. सो इसके कॉन्टेक्स्ट में ऑपोजिट, ऑपोजिट तो ये तो दिया ही नहीं है यार, ये तो दिया ही नहीं. अब क्या करें? इफ दिस इज 13, दिस इज 12, बच्चा बच्चा जानता है कि इफ दिस इज 13, दिस इज 12, दिस इज सपोज टू बी 5. पाइथागोरस थ्योरम, है ना. तो चलिए, so 10p is this divided by this. So 10p is 5 by 12. And what about cot r? Cot r. So from this perspective, cot r, what is cot r? Cot r is basically reciprocal of 10. 10 is opposite by adjacent, so yoga adjacent by opposite. So cot r will be adjacent, which is 5, divided by opposite, which is 12. अरे वो तो जीरो हो गया यार. Zero, nil, शून्य, nothing. This is 0. The answer is 0. Clear? नहीं नहीं, 12/5 नहीं होगा रुद्रांश, वही गलती कर गया ना. 10p माइनस कॉट आर पूछा है. 10p माइनस 10r नहीं पूछा उन्होंने, कॉट आर पूछा है.
अरे वो दूसरा ऋषि नहीं, वो तीसरा ऋषि है, आप इधर फोकस करो। हाँ, ऋषि कोदर केदार, सॉरी केदार, इतना ब्यूटीफुल नेम बिगाड़ दिया मैंने, सॉरी बेटा। केदार, इधर इधर फोकस करिए, है ना। रुद्रांश गलती हुई, समझ में आया। सो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 2 ये था, क्वेश्चन 4 पर आ गया हूं मैं। सो गिवन 15 cot a is 8, फाइंड sin a एंड secant ऑफ a। तो हमेशा ट्राइंगल बनाना है आपने, आप ट्राइंगल बनाओ। ए cot a कुछ a, है ना, ये साइड है a, तो अब जब a लिखा तो bc तो लिख ही दो ना फिर। अब a के बाद pq लिखोगे तो थोड़ा ऑड सा लगेगा, है ना, तो इसलिए अब 15 cot a is 8, so then this is like obvious कि cot a is 8 by 15. Now what is cot? Cot is adjacent by opposite, adjacent by opposite, 10 का रेसिप्रोकल होता है ना। सर हर लेक्चर में मेरा नाम भी हर देते हो, ठीक है केदार, है ना, केदार 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 केदार, हाँ ठीक है। तो अब एडजेसेंट, एडजेसेंट तो ये है, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 8 by 15, दैट डजंट मीन दिस इज 8 एंड दिस इज 15, बट दिस इज श्योर कि 8x एंड 15x। अब बस आगे आप इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट से पता कर लीजिए। अगेन, है ना, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू पॉइंटर्स हियर, सारी एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, 10th क्वेश्चन का भी पॉइंटर्स दे देता हूं। सो इन पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, सो राइट एंगल्ड एट क्यू, सो फटाफट से बनाया आपने, इसको P बना दीजिए, इसको Q बना दीजिए, इसको R बना दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर। अच्छा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पी क्यू प्लस क्यू आर इज 25 एंड पी क्यू इज, अच्छा पी क्यू इज 5। अच्छा क्यों, क्यों भाई इतना कंफ्यूज कर रहे हो। पी क्यू इज 5, पी आर प्लस क्यू आर, अच्छा पी आर प्लस क्यू आर, अच्छा दैट इज 25। नाउ इससे हमको समझ में आ गया, इन दोनों को मिलाकर 25 है तो ये 12 और 13 का ट्रिपलेट होगा। यहां तक सबको समझ में आता है। If this is 5 and this together is 25, then we definitely know 12 और 13 है। But suppose मेरे को नहीं पता था, suppose मेरे को नहीं पता था, तो मैं मान के चलता हूं कि ये x है और ये 25 माइनस x है। यहां तक तो मान सकते हैं ना, क्योंकि बोल रहे हैं ना, देखो पी आर प्लस क्यू आर, है ना, इज 25, बट हमको पता है 12 and 13 है, बट सपोज नहीं पता था। तो देन यू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, यू से 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे अब मान पाइथागोरस थ्योरम बच्चा बच्चा जानता है तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सब सिंप्लीफाई करके आपका x आ जाएगा 12। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ सो दैट इट्स इजियर टू, है ना, सी। सो दिस x इज कमिंग टू बी 12 एंड दिस इज कमिंग टू बी 13। बस इसके आगे पीस ऑफ केक है। साइन पी बोल रहे हैं तो 12 by 13 हो गया। कॉस पी बोल रहे हैं तो 5 by 13 हो गया। टेन पी हो गया 12 by 5, दैट्स ऑल। Okay, that's fine, catastrophic. I was actually missing you in the classes, but good that you're here, है ना? So yeah, so let's continue here. Now the next one is trigonometric ratios of some specific angles. इस टेबल को याद किस किसने किया है, इसको याद किस किसने किया है। सो केदर इज आस्किंग मिथ बस्टर हो गया क्या? हाँ भाई, पहली की रिकॉर्डिंग देख लेना, बट द मिथ वाज it is trigonometry is about right angle triangle. So first myth there is it is about right angle triangle. No, it is about other triangles also. Second is it's not just about triangles. When you study alternating current waves, you will see it's used there. हाँ हाँ चलो, ऋषि आयुष इधर देखो। तो ये याद नहीं करना होता इसको, है ना, इसको याद नहीं करते। कौन याद करता है इसको? इसको हम बनाएंगे, खुद बनाएंगे। सो हम इसको खुद बनाएंगे, इस टेबल को विदाउट मेमोराइजेशन हम खुद बनाने वाले हैं अभी, है ना। तो देखते हैं। तो यहां पर आपको कुछ एंगल्स का हमेशा पता होना चाहिए। एक होता है आपका 0 डिग्रीज का पता होना चाहिए कि भाई साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए 30 डिग्रीज का, इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए 45 डिग्रीज का, 60 डिग्रीज का और 90 डिग्रीज का। आपको पता होना चाहिए tan 60 कितना होता है, sin 45 कितना होता है। ये आपको कोई देगा नहीं, nobody in the exam is going to give you.
नाउ द क्वेश्चन मेनी स्टूडेंट्स आस्क सर व्हाट अबाउट 47 का पता करना है, फिर क्या करूं? वो आपको नहीं चाहिए, वो अगर होगा तो एग्जाम में दिया जाएगा, रियल लाइफ में यू विल यूज द कैलकुलेटर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, सो व्हाट यू डू नाउ इज इन ऑर्डर टू फॉर्म दैट you just write numbers 0, 1, 2, 3 and 4. So students, what are we trying to do? We are trying to make this table without memorizing, है ना? ओ 30 है, 35 लिख दिया। कौन था ये बच्चा? हाँ, रुद्रांश। हमेशा अलर्ट रहता है क्लास में, कभी नहीं सोता। भाई कभी तो सो लिया कर यार। हाँ, तो यहां पे मैंने सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है। फिर मैं क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू डिवाइड स्टेप 2, आई एम गोइंग टू डिवाइड ऑल ऑफ देम by 4. All I wrote is 0, 1, 2, 3, 4, but then I'll divide by 4. ये थोड़े steps memory करने पड़ेंगे, but there's a video just now. Let me let you know. There's a video upcoming which I've been planning for a long time on unit circle. तो वहां आपको ये steps भी याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको logically पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है ना? I've started another series there if you are following me on the English channel. वहां पर मैंने जो नई सीरीज नूडल चॉपस्टिक स्टार्ट करी है, उसमें मैं यही कर रहा हूँ। नूडल चॉपस्टिक सीरीज इज ऑल अबाउट कि जो नूडल्स की तरह गोल गोल घुमा घुमा के सोल्यूशंस होते हैं, उनको चॉपस्टिक की तरह कैसे समझना है सिंपल तरीके से। सो इन दैट सीरीज दैट आई हैव स्टार्टेड, सो फॉलो दैट सीरीज ऑन VOS कॉल इंग्लिश चैनल। तो उसमें आई विल कवर कि ये भी याद नहीं करना पड़ेगा। फॉर नाउ 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Third step and the last step is you divide all this. Oh, sorry, you take the square root of all this. And guess what? Guess what? आपने साइन की वैल्यूज पहली रो बना ली अभी अभी। आपने साइन की रो बनाई है अभी अभी। आप देखिए ना, ये 0/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0 होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट हो गया 1/2। √2 बाय, है ना, 1/2, तो 1/√2, √3/2, and this is 1. So look at this, you have made the first row here. साइन की वैल्यूज आपको आ चुकी है अभी। ये साइन की वैल्यूज आई अभी भी। कैसे आई? आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट कर दिया, उसका। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो आप कि अगर मेरे पास कोई एंगल है यहां पर, है ना, ये आइडेंटिटीज लोग याद करते हैं, कुछ लोग, कुछ समझदार लोग। सो इफ दिस इज 30 एंड दिस इज लेट्स से थीटा एंड दिस इज ABC, तो साइन ऑफ ए कितना होता है? साइन ऑफ ए कितना हो जाएगा? साइन ऑफ ए will be this BC divided by AC, है ना? साइन ऑफ ए क्या होगा? BC डिवाइडेड बाय AC। लेकिन कॉस ऑफ C कितना होगा? कॉस ऑफ C, कॉस ऑफ C होगा BC, क्योंकि एडजेसेंट BC डिवाइडेड बाय AC। तो डोंट यू रियलाइज बाय कॉमन सेंस कि भाई इसका जो साइन होगा उसका कॉस उसके बराबर ही होगा ना, है ना? तो बट इफ दिस इज थीटा दैट इज 90 माइनस थीटा, इजंट दिस C 90 माइनस थीटा? अब ये कैसे है भाई? टोटल ट्रायंगल 180 होता है, 90 ये खा गया, बचा 90, इसने थीटा लिया तो इसके पास 90 माइनस थीटा बचा। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग इज बेसिकली what we found just now, something that students memorize, I don't know why, the sine of 90 minus theta is cos theta and cos of 90 minus theta is sin theta, isn't it? It's very obvious now कि इसका जो साइन होगा उसके कॉस के बराबर होगा, इसका कॉस उसके साइन के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां पर ये साइन की वैल्यूज आ चुकी हैं, अभी अभी आपको क्या मिला है? आपको मिला है साइन ऑफ 0 डिग्रीज इज 0, साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्रीज इज 1/√2 एंड ऑल दैट। बट नाउ इफ आई हैव टू फाइंड कॉस की वैल्यूज, तो कॉस 0 डिग्री कितना होगा? कॉस 0 डिग्री होगा साइन 90 के बराबर। कॉस 0 होगा साइन 90 वाला कॉस 0 इतना होगा। कॉस 30 कितना होगा? कॉस 30 होगा साइन 90 माइनस 30, मतलब साइन 60 के बराबर होगा। तो अब क्या करना है? उर्दू में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में लिख देंगे या हिंदी में लिख देंगे।
उर्दू में पढ़ेंगे ना, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा, वहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा और यहाँ ऐसे लिखना स्टार्ट करूंगा। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई राइट वन, क्योंकि मैंने वहां वन पढ़ा, वन के बाद √3/2 पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने 1/√2 पढ़ा, फिर मैं 1/2 पढ़ा, और फिर 1/0 पढ़ा। आपका सेकंड रो अभी अभी तैयार है, आपका सेकंड रो तैयार है। अरे आयुष गोयल बेटा, आप इधर ध्यान दीजिए, हर बच्चे को बेसिक्स पढ़ने होते हैं। द स्टूडेंट्स हियर, एवरी स्टूडेंट हियर इज प्रिपेयरिंग फॉर एनएससीपी एग्जाम और जेडबलई और नीट, बट द होल पॉइंट इज, जब आप शेक्सपियर को पढ़ते हो उससे पहले आपको वोकेबलरी आनी चाहिए, आपको थोड़े अल्फाबेट्स आने चाहिए। सो वी हैव टू स्टडी द बेसिक्स, क्योंकि क्या होता है, हायर लेवल पढ़ने के चक्कर में कई बार हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भूल जाते हैं, पढ़ना है उनको भी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टडीइंग द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपने कहा मैं तो शेक्सपियर पढ़ता हूं, भाई ABCD तो आनी पड़ेगी ना पहले, है ना, दैट्स द होल पॉइंट। सो या वी हैव टू स्टडी दिस एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सेलरेटिंग। या अब 10 क्या होता है, 10 होता है द डिवीजन ऑफ ऑल दिस, है ना, साइन बाय कॉस। तो आप इसको डिवाइड कर देते हो, 0/1 इज 0, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 2 2 कट जाएगा, 1/√3, है ना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी वैसी हो गई, इधर इधर 1 हो गया, है ना, इधर √3 हो गया, और इधर 1/0 is not defined. Now, if I had enough time, I would have spent more time on this. But let's see if these make sense. Does it make sense? And I'm going to create a new slide here. I'm going to keep this because I don't want you to just blindly follow and, है ना, कि भाई सर ने बोल दिया तो फाइनल, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस सर ने बोल दिया तो फाइनल। इनको टेस्ट करते हैं कि सर ने बोल दिया, हो सकता है ऐसे ही बोल दिया हो, है ना, आपको ऐसे बोल दिया, आपने मान लिया, ऐसा थोड़ी होता है। मैं एक 45 डिग्रीज का ट्राइंगल बनाता हूं। सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, यार ये भी तो 45 होगा यार, कैसी बात करते हैं। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 1 है, और ये 1 1 है ना, ये √2 है। अब देखिए, साइन ऑफ 45 डिग्रीज, कौन सा 45, कोई भी ले लो तो बराबर है। तो साइन ऑफ 45 ये लिया तो 1/√2। चलिए देख लेते हैं, साइन ऑफ 40 1/√2, इसी तरह कॉस ऑफ इज 1/√2। 10 ऑफ 45 हैज टू बी 1, क्योंकि 10 विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। सिमिलरली 30 डिग्रीज वाला जब मैं यूनिट सर्कल पढ़ाऊंगा नूडल चॉपस्टिक सीरीज में, आप दूसरे वाले चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मैं एक यूनिट सर्कल से सिखाऊंगा कि 30 डिग्रीज का क्यों मेक सेंस कर रहा है। इट्स वेरी इजी, अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पर अभी मैं उसमें टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक। चलिए, सो अपकमिंग वीडियो ऑन यूट्यूब, है ना। नाउ इवैल्यूएट, सो दिस इज 8.2 एक्सरसाइज Q1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, sin 60 cos 30, sin 30 cos 60. Can anybody guess what should I be getting here without calculation? Without calculation बताना है आपने। विदाउट कैलकुलेशन, चलिए करके देखते हैं पहले, फिर मैं विदाउट कैलकुलेशन सिखाता हूं आपको कि इन क्वेश्चंस में पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको। साइन 60, साइन 60 इज √3/2, है ना। इसी तरह आप लिख दोगे, अभी के लिए एक सिंपल मेथड तो ये है कि साइन 60 की वैल्यू लिखी मैंने, √3/2 मेरे को पता है। सिमिलरली कॉस 60 की वैल्यू भी √3/2 है, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और कॉस, है ना, कॉस क्या 60 की वैल्यू भी 1/2 है। सो दिस इज 3/4 प्लस 1/4, द आंसर इज 1, है ना। यहां तक तो आपको, नहीं 2 कहां से आ गया भाई, अरे एक ने 2 लिखा, सब 2 लिख रहे हैं, 2 कहां से आ गया, 1, है ना। अब इसको थोड़ा और
गहराई में देखते हैं। अगर आप इसको थोड़ा दूर से देखोगे ना, आपको सोल्यूशन दिखेगा। आपने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री करी होगी, और नहीं करी तो मैं करा देता हूं। आप मेरी बात सुनिए। अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, and from this perspective, let's say this angle being theta, I know this is opposite and this is adjacent, this is hypotenuse, है ना? ये तो पता है हमको। तो एक चीज मेरे को पता है कि ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये तो पता है, बच्चा बच्चा जानता है, बॉर्न होता है तब से पता है उसको। अगर मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को नीचे ले आऊं, क्यों ला रहा हूं पता भी होना चाहिए ना, क्यों ला रहा हूं, ऐसे थोड़ी मैंने बोल दिया। मैं इसलिए ला रहा हूं कि ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज से मुझे कुछ समझ में आ रहा है, साइन बनेगा। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज से भी कुछ बनेगा, कॉस बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उससे फायदा क्या हुआ, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन। सो इफ दिस इज साइन, then this is sin square theta। sin theta का होल स्क्वायर जो होता है ना, बाय द वे, उसको ऐसे लिखते हैं sin square theta। sin square theta लिखने का मतलब हुआ कि sin theta का होल स्क्वायर। सो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर प्लस cos square theta is coming out to be 1। that's an identity that many students memorize घूम घूम के। वो आइडेंटिटी पाइथागोरस थ्योरम है और कुछ भी नहीं है ना? क्लियर है ना? तो अब मेरे को यहां पे दिखना शुरू हो गया कि साइन 60 लिखा है, कॉस 30 लिखा है, बट कॉस 30 और साइन 60 तो बराबर होते हैं, 90 माइनस थीटा देखूं तो इजंट दिस थिंग आपको चमक रही होगी कि ये जो लिखा है साइन 60 और साइन 60 ही है। सो इजंट दैट एक्चुअली साइन स्क्वायर 60? ये साइन स्क्वायर 60 दिख रहा है मुझे, यहां पर दिख जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे काफी, आपको दिख जाएगा। सिमिलरली यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 लाना चाहूंगा मैं, क्योंकि मेरे को कुछ आइडेंटिटी ऐसी दिखेगी। तो दिस साइन 30 की जगह मैं लिख दूंगा कॉस 60, तो प्लस कॉस स्क्वायर 60 हो गया। अब इतना इतना टाइम आप एग्जाम में थोड़ी लगाओगे, ये तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप ये देख के वैसे समझोगे वन आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ पे? सबको क्लियर है? हाँ, तो जो आप कह रहे हो वैसे भी चलेगा ना। जो आप कह रहे हो, तीसरा तरीका मैं बताने लगा हूं उसका, कि अब आप इसको तीसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप कह सकते हो एक आइडेंटिटी, अगेन आई कवर एंटायर वीडियो ऑन आइडेंटिटीज। मेरे पास एक प्लान है उसका, मैं दिखा देता हूं, अपकमिंग वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद जीरो मेमोराइजेशन। जो आपकी 25 30 50 आइडेंटिटीज होती है जिनको आप याद करते हो, वो याद नहीं करना है ना, वो सब मेरे पास प्लान्स हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, करूंगा जल्दी। सो उनमें से एक मेमोरी करते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बड़ी फुर्सत में पढ़ा रहा हूं मैं आज आपको, है ना, क्योंकि मेरे एनएससीपी बैच की क्लास नहीं है आज, मेरे पास टाइम ज्यादा है। सो आई नो दोस, है ना, क्लासेस आई एम रियली मिसिंग दोस, बट या। सो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वही तो लग रहा है, जहां पर ए 60 डिग्रीज है और बी ये है। तो दिस थिंग इज कमिंग आउट टू बी साइन ऑफ 60 प्लस 30। 60 plus 30 is 90, sin 90 is 1। So what I'm trying to teach you right now here is trigonometry में there are different ways to do one and same question। आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, किस किस मेथड से करना है, इट्स योर चॉइस। वो आपको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि भाई आप इस मेथड से करो, इससे करो, इससे करो, वो आपकी मर्जी है। रियल लाइफ में जब आपके सामने सिचुएशन आएगी, तब ये थोड़ी होगा कि भाई ये वाला मेथड यूज करना है आपने उस चैप्टर में, उस क्लास का। ऐसा नहीं होता यार, ये तो है ना, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। So choose the correct options and justify your choice। Again, one of the easy questions here। अब 2 10 30, 10 30 की वैल्यू रख देते हैं। So 2 times 10 30, 10 30 is 1 by root 3 divided by 1 plus 10 square 30। 10 square 30 क्या होता है? 10 square 30 is basically, 10 square 30 is 1 by root 3 का स्क्वायर 1 by 3। तो ये सिंप्लीफाई कैसे हो गया, है ना, 2 2 by root 3
डिवाइडेड बाय 4/3। अब ये फ्लिप हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा √3/2। √3/2 तो sin 60 होता है यार, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए, बाकी आइडेंटिटी से भी कर सकते हो आप इसको, आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो दूसरे तरीके से, है ना, कि भाई आप 1/10 स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। हाँ, जैसे केदार बता रहा है ना, वी विल डू दिस, है ना। थोड़ी सी और आइडेंटिटीज बता देता हूं मैं, है ना, जब चली है बात तो कर ही लेते हैं। तो अब जैसे एक ये आइडेंटिटी थी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पूरे को साइन या कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। सो एक काम करो, ये इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इजंट इट? ये बन गया ना। अब सिमिलरली अगर आपने उसको डिवाइड किया होता, है ना, इसको अगर आपने पूरे को साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से करते, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बनता 1, और कॉस बाय साइन बनता कॉट, और ये बनता कोसीकेंट। ये भी हो गया, है ना। इनको याद करते हैं घूम घूम के। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, इसको यूज करके हम पिछला क्वेश्चन कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो ये टेन स्क्वायर 30 प्लस 1 इज सीकेंट स्क्वायर 30। ध्यान से देखिए, टेन स्क्वायर 30 प्लस 1 इज सीकेंट स्क्वायर 30। तो आपके पास क्या होगा, यहां पे कर लेते हैं येलो कलर से, ये मेरे पास बन गया 2 टाइम्स टेन 30 upon secant square 30. Now what is secant? Secant is 1 by cos. So then you plug that in, and then you get 1 by cos square 30, and then you plug in the values, है ना। ये sin by cos कर दो, cos ऊपर जाएगा, and that's all. Now more identities, there are many more identities, जैसे कि, है ना, एक तो हमने यहाँ पे कर ही ली थी कि sin of 90 minus theta will be cos theta, लेकिन व्हाट अबाउट 90 प्लस थीटा? अब उसको याद कर, तो एक बड़ा सा टेबल आपकी बुक में बना हुआ है। मैं उसके लिए अब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि यू नेवर हैव टू मेमोराइज एनीथिंग। अगर ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल 90 प्लस थीटा हो गया। So if I'm saying how much is that, you can obviously do with common sense. I'm repeating again and again, zero memorization se, zero memorization se we are going to cover very soon. I promise that very soon, but that will be noodle chopstick video, क्योंकि that has a different kind of, है ना, पर्पस। यहाँ का पर्पस मेरा बिल्कुल सीबीएसई बेस्ड है, वहां पर वी विल कवर दोस्त। ये सारी 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव, एक कॉमन सेंस है। if you're willing to learn with zero memorization, I'm going to teach you with zero memorization. Now next one is express the ratios of cos a, tan a, sec a in terms of sin a. बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, इन सबको sin a के टर्म्स में करना है। मतलब कह रहे हैं कॉस ए अगर मेरे को साइन ए के टर्म्स में करना है, तो कॉस ए साइन ए का कुछ भाईचारा है, मुझे लग रहा है। हाँ, है कुछ याद आ रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। वी नो दैट, ये पता है मेरे को। तो साइन ए को उधर ले जाता हूं, तो कॉस स्क्वायर ए कम्स आउट टू बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो कॉस ए is equal to square root of 1 minus sine square a. Students, again I'm saying NSCP के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, तो on the English channel I'm covering more videos there which are targeted for NSCP.
तो यू शुड वॉच दोस, और ये टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, सो यू विल गेट मोर अपडेट्स ऑन दैट, सो है ना, सो दैट वी है ना। हाँ ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट रुद्रांश, लव यू बेटा, है ना। तो कॉस है इन टर्म्स ऑफ साइन ए आ गया, अब टेन ए बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन ए। सो टेन ए होता क्या है यार, टेन ए होता है साइन ए बाय कॉस ए, लेकिन वो बोल रहा है साइन ए के टर्म्स में चाहिए, मतलब कॉस ए यूज करना पाप है। अरे पाप है तो इसको यहां रख दो ना फिर, अगर कॉस ए वर्ड यूज करना ही पाप है, गाली है, तो भाई आप ये रख दो। देखिए ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ साइन ए। सिमिलरली सेक ए इज वन बाय कॉस, सो वन बाय कॉस मतलब वन बाय, है ना, दिस थिंग, दैट्स ऑल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, ओके, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस cos a plus secant a का whole square is equal to 7 plus 10 square a plus cos square a. Very easy. I'm not going to solve this for you. I'm going to give some pointers here so that you can prove yourself. So sin a plus cosec a का whole square. Now whole square का क्या मतलब? A plus b का whole square, right? A plus b का whole square. So this is going to become, I need a lot of room here. So maybe sin square a plus cosec square a plus 2 sin a cos a, ना ये बना ना, ये चीज, इसको एक्सपेंड किया, अब नीचे लिख लेते हैं, जगह तो बहुत चाहिए पड़ेगी। फिर उधर आया कॉस स्क्वायर है। एक्चुअली जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको ये क्वेश्चन देख के दिख जाएगा कि वहां दिख रहा है ये, यहाँ पे ये 2 आ गया, 3 आ गया, जो भी आ गया आपको दिख जाएगा। वो कोसेक लिखना था वहां पे, सॉरी, है ना, कोसेक, तो आपको दिख गया कि ये 2 बन गया यार, क्योंकि साइन है कोसेक है रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, यहाँ 2 मिल चुका है, वहां भी एक 2 मिलेगा अभी, प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 cos a secant a, क्योंकि ये 7 कहां से आ गया, ये देखना है ना, बहुत इजी है। डोंट यू थिंक दिस थिंग इज 2, क्योंकि sin a इज 1 बाय cosec a, तो कट जा रहे हैं। सिमिलरली cos a secant a एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सो दिस इज गोइंग टू, है ना, जस्ट कैंसिल आउट ईच अदर। सो व्हाट वी हैव नाउ इज 2 हियर एंड 2 हियर, है ना, ये दोनों 2 2 हैं। अब बचा क्या, अब मेरे को चाहिए tan स्क्वायर है cot स्क्वायर है, पर यहां पर है साइन कोसेक, ये सब क्या करूं मैं इसका। तो नाउ व्हाट यू डू इज यू कन्वर्ट देम। सो साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर, एक तो ये 1 आ गया, अब ध्यान से देखो ये 1 आ गया, दिस इज 1, 1 प्लस टू 5 तो मेरे पास आ ही चुका है अभी तक, है ना। तो आप ये देखो, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये लाइन कर देता हूँ, दिस प्लस दिस, रिमेंबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 and this is 2 and this is 2, so this is totally giving me 5। अभी तक 5 मिल चुका है मुझे, 5 मिल चुका है, पर अभी बचा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ये बचा अभी मेरे पास, पर मेरे को तो ये चाहिए था। बट रिमेंबर दोस आइडेंटिटीज, tan स्क्वायर ए प्लस 1, है ना, मैं भूल जाता हूं, मेरी मेमोरी कम है, तो मैंने उसके लिए cos से डिवाइड किया, अगर उधर सीकेंट आएगा, हाँ, तो सीकेंट स्क्वायर ए इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, पता होना चाहिए भाई, क्योंकि यहां पर ये चाहते हैं ऐसा प्रूव करो। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस आ गया आंसर मेरा, 5 प्लस 1 इज 7 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर, चलें आगे, चलिए। हाँ, कितने क्वेश्चंस और हैं? हाँ, दिस इज द लास्ट वन, इज इट? ओके, आई विश आई हैड मोर क्वेश्चंस, बट ये देखने में बड़ा खतरनाक सा लगता है कई बार। Sir, is it impossible to crack IOQM without coaching? Very good question, catastrophic, and I have covered this many times in my videos also. First of all, impossible should not be a word in your dictionary. आपके लिए कुछ भी चीज पॉसिबल अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है। मैं इस बात को पहले कवर कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन इज कि भाई कोचिंग के बिना क्या मैं क्रैक नहीं कर सकता IOQM? आप कर सकते हो, आप NSCP क्रैक कर सकते हो, आप JEE कर सकते हो, नीट कर सकते हो, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज की जरूरत है, जोश। फिर कोचिंग कहां फिट होती है? कोचिंग फिट होती है एक सिस्टमेटिक प्लान लेकर आती है ना। अगेन आई एम सेइंग, मेरी गाइडेंस के बिना आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, किसी भी टीचर की गाइडेंस के बिना क्रैक कर सकते हो कोई भी एग्जाम।
इट इज पॉसिबल, यस 100% पॉसिबल, बट कोचिंग से थोड़ी आपको गाइडेंस मिल जाती है, गुरु मिल जाता है काइंड ऑफ। मैं कई बार कवर करता हूँ ना, मेरे को, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, अब मुझे जाना है भाई, यहाँ से चेन्नई जाना है, मैं कह रहा हूँ वॉक करके जाऊंगा, बहुत जोश है, चेन्नई तक वॉक करूंगा, क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ, पर रास्ता दिखाने वाला कोई तो हो, नहीं तो पता लगा मैं जा रहा हूँ कैलकाटा की तरफ चल गया और बे ऑफ बंगाल में गिर गया, या उधर गुजरात की तरफ गया और उधर अरेबियन सी में गिर गया, है ना? तो हो सकता है कि मेरे को रास्ता गलत मिला हो, तो मेहनत तो कर ली मैंने, पर उस मेहनत से मेरा डेस्टिनेशन नहीं कवर हो पाया। अकेले में कर सकता हूँ, आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च कि किस तरह जाना है, कैसे नहीं जाना है, पर एक गुरु जब मिल जाता है तो वो एक रास्ता दिखा देता है, दैट इज द बिग पार्ट, है ना? दैट इज इट। अदरवाइज यस, यू कैन डू विदाउट कोचिंग 100%। चलिए, सो अब मेरे को ये 1 + tan² है अपॉन 1 + cot² है, इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसके बहुत तरीके हैं। पहली बात तो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? 1 + tan² है, क्या होता है ना? आपको पता है क्या होता है? 1 + tan² है, क्या होता है? सीकेंट² है ना? इसी तरह ये आपको पता है कोसेक² है ना? फिर आप उसको उल्टा कर दो कि यहाँ पे साइन ले आओ, कॉस ले आओ, देन यू डू ऑल दैट, वी कैन डू दैट, इट इज पॉसिबल टू डू दैट वे। बट इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे इजी तरीका होता है, जो फॉर्मूला हमेशा चलेगा, आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, हमेशा चलेगी वो चीज। तो आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे, साइन को एस लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए, तो और कॉस को सी लिख देता हूँ, टाइम बचेगा और कुछ नहीं। तो साइन² अपॉन कॉस² ऐसे बन गया ना, tan² है, डिवाइडेड बाय 1 + cos² बाय sin², ऐसे बन गया ये, देखिए। अब आपने, है ना, एलसीएम लिया, तो कॉट बाय साइन, सो sin² है ना, ये क्या बन गया? cos² प्लस sin², सो ये आपका बन रहा है 1/cos², है ना? ये बन रहा है ना, क्योंकि sin² प्लस cos² 1 हो जाएगा, 1/cos² डिवाइडेड बाय sin² प्लस cos² 1 हो गया, 1/sin²। वाओ, तो ये तो फिर, है ना, सब कर आगे sin² प्लस cos² tan² बन गया। तो ये चीज मेरी जो है tan² के बराबर बन चुकी है। एंड सेम गोज फॉर दैट, यू डू द सेम थिंग, you exactly do the same thing for here, you say 1 minus sin by cos का होल स्क्वायर, है ना, 1 by sin by cos अपॉन 1 minus cos by sin, अभी इस तरह है, तो 1 by sin by cos 1 by cos by sin का होल स्क्वायर, and again you do that, cos minus sin, sin minus cos, so this is cos minus sin by c, है ना, by c लिख ही देता हूँ ना, by c over sin minus cos, sin minus cos by s, and now you do all that है ना, ये इसको किया, नेगेटिव साइन लिया, या कर ही लेते हैं ना, इसको छोड़िए, कर ही लेते हैं, तो साइन माइनस कॉस और इसका पूरे का स्क्वायर करना है, तो इसको मैं साइन माइनस कॉस को नेगेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन लिख दूं, तो ये क्रॉस क्रॉस हो जाएगा और अंदर हो जाएगा माइनस एस बाय सी, सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ इज ब्रैकेट के अंदर माइनस एस बाय सी का होल स्क्वायर, एस बाय सी 10 होता है, नेगेटिव 10 आ रहा है, बट स्क्वायर करोगे तो tan² आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। सो यू विल से ओके, this thing is coming out to be tan², this is also coming out to be tan², and hence they're equal to each other, and they're also equal to tan². So wasn't this easy? Just let me know, है ना? So I'm going to bring more concepts soon, just launching paid batch also, like Catastrophic was talking about. आपको इसको ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आप फ्री में सब कुछ कर सकते हो। The benefit of joining these batches is the guidance that comes with it, the plan that comes with it, कि इस महीने में आपको ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर संडे को आपका टेस्ट होना है, टेलीग्राम में आपकी डाउट क्लियरिंग होनी है, क्योंकि डाउट्स कहाँ क्लियर करोगे? दोज आर द थिंग्स दैट यू गेट विद द पेड बैचेस, अदरवाइज फ्री में सब कुछ होता है, देयर इज नो नीड फॉर एनी कोचिंग, है ना? So these are the 5 modules that we had planned for. So module 1 and 2 are completed already. Module 3 is starting on upcoming Thursday, 16 तारीख को। उसमें we are going to cover mechanical properties of solids, but the best thing that stands out here is simple harmonic motion. Remember how I spoke about trigonometry is much beyond triangles. Simple harmonic motion is all about sine waves, sine wave, cos wave एक ही होती है, वो हम देखेंगे, उसमें एक ही होता है, कोई फर्क नहीं होता दोनों में।
Similarly, जब हम waves पढ़ेंगे यहाँ पे, we are going to do lot of trigonometry over there. So you will see how trigonometry comes into picture in these modules also. Then we go to module 4 and module 5. Now, since there was a big demand of students saying thoda sa discount and all that, so what we have done is a bundle किया हमने 3, 4, 5 को. So each module is 2500. If you apply this coupon BS Pro 1, you get 10% off. But if you buy all these three, तो 2500 times 3 is 7500, उसमें 1000 rupees minus हो गया, है ना? Many students were saying कि bundle पूरा दे दो, है ना? Give discount दे दो. So we give 1000 rupees off there. But again, you can still use the coupon. It's not like ये मिल गया discount, वो तो मिलेगा ही. ये तो मेरी तरफ से gift है आपको. ये तो आप लिख ही लो, BS Pro 1. तो 6500 में भी 10% गया, मतलब 650 और कम हो गया. 5850 में you get module 3, 4, 5. But the best part is yet to come. You also get the previous modules की recordings, all the recordings of module 1 and module 2. And you will be part of the Telegram channel for doubt clearing. All the students clear their own doubts. एक दूसरे की doubt clear करते रहते हैं. If required, I will jump in, obviously. है ना? Sunday को test हो गए, so many things, assignments and all that. So if you need any guidance or help, Ayush is our team member who can help you anytime. ये note कर लीजिए 8050291657. If you call him, tell him that भवदीप सर की क्लास में भवदीप सर ने बोला था कि आप हेल्प करेंगे, आप मेरी हेल्प करिए. आप उनको ये बात बोलिएगा, क्या ना, भवदीप सर ने बोला था आप मेरी हेल्प करेंगे, आप मेरी प्रायोरिटी बेस पर हेल्प करिए. ठीक है? ओके. So Dhruv got a gold medal for India. I keep showing his picture last year physics में. अगर वो कर सकता है, आप कर सकते हो. Aditya Avnish got silver medals, obviously as a part of team. Now join this Telegram channel. So I'll keep seeing you in these classes. Now, one more thing, students, if you really like this video, you should share with your friends, because the more the participation in the class, the more the josh of the teacher. You know? And also subscribe to English channel where I've started the new series of making the things easy via noodle chopstick series. चलिए, thank you so much students. Catastrophic, Rudransh, everybody. कुछ messages आ रहे हैं, I'll read those. Mohan, yes, but we do have goals and personally want to engage in mathematical research, so this exam will be good start. Okay, sir, this chapter is too much easiest. I don't know why trigonometry is said to be tough chapter, because as I say in noodle chopstick series, maybe some teachers want you to feel that this is a difficult chapter. They want you to feel इट इज अ रॉकेट साइंस कि भाई तू मेरी क्लास में नहीं आया होता ना तो तेरे को ये समझ में नहीं आना था, है ना? और मेरा सोचने का तरीका ऐसा है कि आप मेरे से पढ़ लो तो डाउन द लाइन यू शुड से सर मेरे को आपकी क्लास की जरूरत ही नहीं. आई रियली व्हेन आई टेक 1-to-1 कोचिंग आई मेनी टाइम्स से दैट कि भाई मेरा गोल है 6 महीने बाद आप बोलो सर टाटा बाय बाय, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर एंड दैट विल बी द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी, because that day has to come when you can say आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, I will start from here my journey myself. जब जरूरत पड़ेगी बीच बीच में मैं आपसे हेल्प ले लूंगा. अब मेरे को आपकी जरूरत नहीं है. दैट इज वेरी हैप्पी डे फॉर अ टीचर कि भाई आप सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हो, बीच में जब मर्जी हेल्प के ले लो. ठीक है? सो विद दैट सेड, थैंक यू बेटा. टेक फुल प्राइड इन योर कमिटमेंट्स एंड बाय बाय बच्चों. टेक केयर.